मणिपुर एक डिवाइडेड स्टेट है, जोग्राफिकली और एथनिकली, मेतीज और कुकीज़ के बीच में। और 18 महीनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये जो हिंसा जारी है, इसका असर अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, तो वो है छोटे छोटे बच्चों के लिए। महिलाओं पर भी हर तरफ से जो है जुर्म की खबरें आई हैं, रेप के मामले हुए हैं, किलिंग्स हुई हैं। बहरहाल यहाँ रिलीफ कैंप्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। हम चूड़ा चांदपुर में हैं, जो हिली एरियाज़ में हैं, जो कुकीज़ का क्षेत्र है, और यहाँ मैतीस की एंट्री नहीं होती है। लेकिन जो चूड़ा चांदपुर में रहने वाले लोग हैं, वो इम्फाल एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरते हैं, वो आइजवाल से होते हुए दूसरे बॉर्डर एरिया से जाते हैं। तो यहाँ जाकर जो है हम कुछ लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये मुआल वैफेई रिलीफ सेंटर है। ये थोड़ी सी ऊंची क्षेत्र में है, पहाड़ियों में है, और यहाँ जो मार ट्राइब है उनके लोग ज़्यादा हैं। कुछ 40 लोग हैं इस कैंप में। हाय, कैन आई टॉक टू यू? What's your name? Juliana, Ziliana, since when are you in this camp here? almost 2 years. 2 years. Where were you living before this? Sugnu, Sugnu. So why did you have to come here? Why did you leave Sugnu and come here? because we live and we lost our home Hmm. and we lost our livelihood support system. So what were your parents doing? What do they do? They're farmers. They're farmers. So you've left your home, your farm land, everything there? Mm, And which class are you in right now? 7. 7th. How difficult has life been for you in these last few months here? Tell us about the challenges that you face. कि ये स्माइल कर रही हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर है। क्लास 7 की बच्ची है ये, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर सुगनू इलाके में से वहाँ डिस्प्लेस होकर यहाँ इस कैंप में रह रही हैं। मई 2023 की हिंसा की वजह से इनकी जो खेती की ज़मीन है परिवार का और जो घर है वो उनको छोड़ना पड़ा था। लिविंग इन अ कैंप लाइक दिस, स्टडिंग विदाउट इंटरनेट, इट मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट। Very much. So do you face a lot of problem in studying and learning? No. You don't? Do you think you can go back to your home sometime soon? No. You can't. You miss home? Yes. अपने ज़िंदगी को एक सूटकेस, एक बॉक्स में पैक करके कहीं और मूव करना किसी के लिए भी कभी भी दुनिया भर में आसान नहीं होता है, लेकिन इन्हें उम्मीद नहीं है कि अपने घर शायद वापस लौट पाएंगी। Hi, what's your name? Richard, Richard? Which Yes. class are you in? 9. Class 9. And where are you from? Sugnu. Sugnur itself. How far is Sugnur from here? I don't know exactly. So when did you leave your home and why did you leave your home? Because the Meitei burn our house Hmm? and they burn our villages. Okay. Do you remember, was it very violent when you had to leave your house? You were trying to save your lives? Not much violent. Okay. Do you think you can go back? You know, how living in a relief camp like this, how difficult is it? It's quite difficult. We cannot study properly, and because we were thinking about our daily lifetime in the Sugnu area side. How different is it? It is very different because in our village we stay family by family in a single house. Now we stay together. It's quite difficult. So how many people in one room here? Around 4 or 5, sometimes 2 family. They stay together. What about food? What about the other, issues? Food is not quite proper, and always time we eat dal. Dal. So you miss home? Yes, I miss my home, my village, my hometown. I miss my home very much. Do you think you can go back?
I don't think. Why? Because if there is Kukilan, we may go back. Did you have Methi friends before the conflict? No. Never? And you can't think of Methis as friends ever? तो जाहिर सी बात है, ये लोग डिस्प्लेस होने के पहले अपने अपने घरों में रहते थे, मकानों में रहते थे, उनकी ज़िंदगी में कुछ सुविधाएं थी। यहाँ एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं। आइए आपको अंदर का भी हम दृश्य दिखा देते हैं। ये एक आयुष हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में इस वक्त जो विस्थापित हैं उनके लिए मेकशिफ्ट कैंप्स बनाए गए हैं और यहाँ प्रोविजंस वगैरह पहुँचने में भी काफ़ी बारी दिक्कत होती है क्योंकि हाईवेज में ब्लॉकेड है, आप एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए इस रिलीफ कैंप में जैसा आप देख रहे हैं चाइल्ड सपोर्ट सेंटर भी बनाया गया है क्योंकि बच्चे हैं, ये टीनेजर्स हैं और इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अंदर कमरे में जो है, आइए आपको दिखाते हैं स्थिति। This is your house? Yeah. Can we just take a shot of your room? ये वो कमरा है जहाँ रिचर्ड रहते हैं। How many people stay here in this room? Four of you. And that's your whole family or somebody else's family? Somebody else's family. So you're sharing a room with somebody else. तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये 2 बिस्तर हैं जिसमें मच्छरदानी लगाई हुई है और बहुत सारे ऐसे रिलीफ कैंप भी हैं जो इससे कहीं ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ रखा गया है। यहाँ कुछ लोग हैं जो इस साल जून में आए हैं, 2 बच्चियों ने कहा, क्योंकि जब जब ताज़ा हिंसा की साइकिल्स हो रही हैं तब तब और लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप याद रखें, जिंदगियां जाती हैं, वहीं लोगों की नौकरियां जाती हैं और लोगों की जो जिंदगियां हैं वो पटरी से उतर भी जाती हैं, क्योंकि एक डिस्प्लेस्ड होकर रहने के लिए आप सोचिए आपके पास कोई प्रिवेसी एज सच नहीं है और आप स्ट्रेंजर्स के साथ में एक कमरा शेयर करने को मजबूर हो रहे हैं। जिसे जो मिला वो अपनी सामान किसी तरीके से पैक करके लेकर आया है यहाँ। What's your name? Alvina. Adna? Yes. And where are you from? Sukru. From Sugnur itself. Adna, so are you sharing this room with your sisters or did you know the people that you were sharing this room with earlier? Cousin. Your cousins? Okay. And do you have electricity here? Yes. So, or does the electricity keep going off every now and then? Yes. थोड़ी इनको बोलने में दिक्कत हो रही है, बट क्लियरली यहाँ पर देखिए यहाँ किसी ने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। हैप्पी बर्थडे। Whose birthday was this? This Nancy. Nancy? When was your birthday? 15 November. Oh, 15 November? Yeah. Which class are you in? 10. 10th? Yeah. So, before coming to this camp, last year, were you in this camp or last year were you at your home? Here. You're here since last year. So, when was the last, when you celebrated your birthday at your home, did you used to have a party with your friends? Yeah. But here, No. no party. Yeah. तो इनकी how old are you? 16. 16 साल की हुई हैं। इनका बर्थडे सेलिब्रेशन का वहाँ पे पोस्टर है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है ये इस कैंप में ही हैं। क्लास 10 की पढ़ाई कर रही हैं। आप सोचिए हम दिल्ली में जो हमारे नॉर्मल शहरों में बच्चे हैं, दिन भर हमारा वक्त लगा रहता है सोशल मीडिया पर। हम इंस्टा देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, ट्विटर देख रहे होते हैं। इस वक्त हमारे फ़ोन पर कोई मोबाइल इंटरनेट नहीं है और सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जहाँ लोगों को इतनी आदत हो गई आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके लिए यूट्यूब देखता है, उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारी मटेरियल की रीडिंग करता है। वो सारे रिसोर्सेज इन बच्चों को अवेलेबल नहीं